चलो लेट्स start discussing all these. ठीक है बन भाई. तो I have told you कि you have to apply X method. ठीक है. And all those complexes you need to understand कि जो ये अंदर ब्रैकेट है इसके अंदर एक तो मेटल है और ये लिगेंड्स है. इन लिगेंड्स का खुद का कुछ चार्ज होता है, राइट? इन लिगेंड्स का खुद का कुछ चार्ज रहता है. So if you know the charge, then it is very easy to understand. जैसे NH3 का zero, NH3 is a neutral molecule. C2O4 is nothing but oxalate C2O4. That is nothing but oxalate ion. ठीक है, वो हम ये बहुत देखेंगे यहाँ पे, oxalic acid से oxalate ion आता है. So the what is the charge over here? -2. Now things are going to be easy if you are going to apply X method. So you will say कि भाई ये जो है +1 plus X -2 into 2 -4 plus 0 equals to 0. Then X is nothing but ये क्या हो जाएगा +1 और -4 -3 equals to 0. Then X is +3. So you got first answer, that is for this +3. ठीक है. Now what is this P2O7 K4P2O7? So this is, if you can recall, this is going to be H3PO4 है ना. This is called phosphoric acid. This is called, so you have to, let's say I will solve here है ना, solution. So second one B is K4P2O7, right? So you can recall this is H3PO4, sorry. It is called orthophosphoric acid, right? And if you are going to, let's say, make a pyroform, then it is pyro क्या होता है, इसके 2 यूनिट में से एक H2O निकाल दो, then it is going to form H4P2O7. then this is pyrophosphoric acid, right? So what we have done is we have removed hydrogen और उस सबकी जगह potassium आ गया है. तो what is going to be the name of this compound? If somebody has to write the name, then the name is going to be है ना, potassium pyrophosphate. ठीक है. So this is going to be the name of this compound. Anyway, ये तो naming मैंने आपको बता दी. Let's say if you have to write what is the oxidation number, so this is +1, this is X, this is -2. So if you are going to apply, then +4 plus 2X minus 14 equals to 0, then 2X minus 10 0, then X is +5. So the second answer is +5. What is third question? CrO2 Cl2 क्या है ये? CrO2 Cl2. This is called chromyl chloride. जो फेमस नाम आएंगे ना उनको मैं बता दूंगा आपको, है ना. क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. वी आर गोइंग टू हैव -2 -1 and the X, so this is going to be X -4 -2 equals to 0, then X will be +6. ठीक है. D, this is a complex. ठीक है. Na2FeCN5NO. Now you need to remember कि जो NO है ना, that is exactly existing as NO plus, right? So this ligand NO is having +1 charge. क्या? This ligand NO is going to have +1 charge. ठीक है, right? So what is going to happen? इसको बोलते हैं, अब इस पे +1 आ गया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, +1. This is -1, this is X, and this is also +1. So what you are going to write? +2 plus X minus 5 plus 1 equals to 0. Then you will say X, है ना. Over here you are going to write, so this is -2 equals to 0.
and X equals to +2. So iron is in +2 oxidation state. ठीक है, Mn3O4 De. Mn3O4 is similar to Pb3O4 है ना. This is called mixed oxide. ये क्या है? Mixed oxide of MnO plus MnO2. It is similar to Pb3O4 है ना. This is also mixed oxide of PbO plus PbO2. कैसे? 2 MnO and 2 PbO. अब इनको ऐड करो आप, तो टोटल Pb कितने हुए? 3. टोटल ऑक्सीजन कितने हुए? 4. ठीक है. So it's very important. You have to know this part कि Mn3O4 Mn Pb3O let's say 4 है, तो क्या हो रहा है. ठीक है. Now similarly, if you are going to write Fe3O4, let's say, then it is also mixed oxide. किसका? FeO का and Fe2O3 का, right? So then it is going to be mixed oxide like this. ठीक है. Anyway, now I'll come to our question, that is Mn3O4. Then you are going to write Mn, that is X3O4, that is -2. So 3x minus 8 is equals to 0. Then x equals to plus 8/3. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं बस ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, कितने लोगों को इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, who knows इनर्ट पेयर इफेक्ट? आ जाओ. किसको याद नहीं है इनर्ट पेयर इफेक्ट? बताओ यार, ऐसी तो क्लास है ये, सब भूल जाती है. बोलो. हाँ सर, इनर्ट पे इफेक्ट मतलब ग्रुप 13, 14 और 15 में लगता है, जिसमें कि बिल्कुल क्या कौन सा पीरियड था उसकी, मतलब कि टेलोरियम वगैरह के लोअर चार्जेस ज्यादा स्टेबल होते हैं. Tl1+ is more stable than Tl3+. Okay, good. So what inert pair is कि ग्रुप 13, 14 और 15 में जो लास्ट let's say 6 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 6 रो के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें होता ये है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4f सबसेल, राइट. s ब्लॉक s सबसेल के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, एंड दैट्स व्हाई द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल. तो बताओ PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4. PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4. Pb इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा? यस दिखाएगा. तो बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे कि PbO2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. अभी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? विल कम टू दैट पॉइंट, बट अभी के लिए समझा दे रहा हूँ. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, एजेंट क्या होता है ना. ट्रैवल एजेंट से याद रखो. एजेंट क्या होता है? जो दूसरों की टिकट बुक करता है, राइट, खुद की नहीं, राइट. ट्रैवल एजेंट से याद रखना, ठीक है, दूसरों के लिए जो काम कर रहा है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे. अगर किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस. तो क्या होगा? रिड्यूस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? पहले तो मैंने टर्म बताया आपको. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? एजेंट का मतलब है which is going to work for others, है ना. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is going to oxidize others, right? So what is going to happen? मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होना ही है. अगर किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन. ठीक है. रिडक्शन का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर विल डिक्रीज. तो Pb जो है ना +4 में है. Pb कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है? 2+ में, है ना. तो अगर किसी ने पूछा PbO2 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉट, तो क्या होगा आंसर? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. थोड़ा ये लॉजिक आ गया इसमें बीच में.
वी विल कम टू दैट पॉइंट, थोड़ी देर में आएंगे इन सब चीजों पे अभी। तो यहाँ पे ये समझ में आया PbO2 फूड ऑक्सीडाइजेशन। हाँ हाँ, बोलो क्या डाउट है। हेलो सर। हम्म सर अभी आपने बोला था Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हम्म तो अगर वो +4 तभी तो ऑब्टेन करेगा ना जब वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब क्या वो किसी और को उसे +4 चार्ज आ रहा है, मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, तो मतलब वो उसने दे रहा है, ऑक्सीजन को दे मतलब दिया है ना, 2 ऑक्सीजन है ना उसके साथ हाँ, PbO2 तो में। वो उसे पॉजिटिव है तो वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा ना क्यों? सर, क्योंकि तभी तो मतलब वो पॉजिटिव हो पाएगा। कौन पॉजिटिव हो पाएगा? पीबी। तो हम PbO2 की बात कर रहे हैं, PV की बात कर रहे हैं? हम पीबी की बात कर रहे हैं। PV की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ हम हाँ PbO2 की बात कर रहे हैं पूरे की, हाँ। है ना? PbO2 में PB की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, बट पूरा कंपाउंड क्या है? PbO2। जैसे मैंने सोडियम बोल दिया और NaCl हो गया, तो दोनों सेम है। नहीं। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट PbO2 क्या है? PbO2 क्या करना चाहता है? लेड इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों है? मजबूरी में। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मैंने बोला था। हाँ। हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ पॉसिबल है ना? क्यों पॉसिबल है? ऑक्सीजन बहुत लालची है ना, खींच लेता है इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, हाँ। तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। लेड तो मजबूरी में उसके साथ है क्या करेगा, देना ही पड़ेगा। लेकिन वो खुश नहीं है ना? हाँ। लेड इज नॉट हैप्पी कि यार मेरे 4 इलेक्ट्रॉन चल गए, मैं तो भैया अपना ऑक्सीडेशन नंबर और ये जो पॉजिटिव चार्जेस को कम करूंगा। दैट्स इट। तो यहाँ से समझ में आया? तो वो रेड्यूसिंग एजेंट नहीं बनेगा। ऑब्वियसली नहीं बनेगा। फिर से वही बात, हम बात किसकी कर रहे हैं? क्या हम ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि लेड इज कन्वर्टिंग इनटू PbO2, और वी आर टॉकिंग अबाउट PbO2 कि PbO2 क्या करेगा, PbO2। है ना? PbO2 क्या है ना? करेगा? हम हाँ। ये थोड़े ना बोल रहे हैं कि भाई देखो PB जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये क्या हो रहा होगा यहाँ पे। वी आर नॉट टॉकिंग दिस ना, नो, हम इसकी बात तो कर नहीं रहे ना, नहीं कर रहे। है ना? हम क्या बात कर रहे हैं कि PbO2 का बिहेवियर क्या है, व्हाट PbO2 वांट्स टू डू। अच्छा, ओके, समझा। समझ में आया? हाँ हाँ, थैंक यू सर। सो व्हेन वी आर सेइंग कि कोई भी कंपाउंड है जैसे, तो उसी कंपाउंड के नेचर की बात हो रही है। जैसे मैं Fe2O3 बोल रहा हूँ, तो यहाँ Fe2O3 में, है ना, हम केवल Fe को नहीं समझ सकते, राइट? वी कैन नॉट से कि Fe क्या होगा और ये क्या करेगा, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट Fe in Fe2O3 and what is going to be oxidation state, what is going to be, let's say, charge over here, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। so anyway, इतना समझ में आ गया? चलते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट था E के बाद E, F, CaClO2 whole twice। तो ये लिखा हुआ है CaClO2 whole twice। जब वी आर आस्किंग दिस, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये तो आपको पता है +2, ये x, ये क्या हो गया -2। अब यहाँ होल ट्वाइस है तो इस पूरे का लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा +2 प्लस, अंदर लिखेंगे x -2 × 2 4 × 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। +2 + 2x minus, let's say over here it is going to be -8 equals to 0। so 2x equals to 6 and x equals to +3, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया ये क्या किया, राइट? इसका होल ट्वाइस था तो पहले हमने इसका पूरे का लिखा, x -2 × 2 -4, फिर यहाँ ट्वाइस था तो वी हैव मल्टीप्लाइड लाइक दिस। चलते हैं, और क्या है? I Fe, okay। नहीं, क्या था ये?
G, sorry, not I. FeNOH2O whole 5 SO4, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड। ये जो है इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ऐसे ही हमने एक कंपाउंड यहाँ पे देखा था, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, कॉमन नेम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का, राइट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये कहाँ यूज होता है? दिस यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अगर आपने पीओसी पढ़ा होगा, पीओसी पढ़ लिया ना, तो उसमें ये कॉम्प्लेक्स आया होगा। कहाँ पे आया होगा? लेसेग्ने टेस्ट में। हाँ, तो वहाँ पे आया, राइट, यस। तो ये आ गया है ना, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। तो ये आता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एनीवे, NO इज इन +1, H2O 0, ये -2। तो बताओ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सो आयरन इज गोइंग टू बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है ये? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स? जनरली क्या होता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +3 रहती है। यू कैन रिकॉल FeSO4 या Fe2SO4 होल थ्राइस, राइट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। तो जनरली +2 +3 रहती है, बट इन दिस कॉम्प्लेक्स इट इज +1, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे यूज होता है? ये वी आर गोइंग टू सी इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, और वहां पे NO2 माइनस और, है ना, टेस्ट डिटेक्शन ऑफ NO2 माइनस और NO3 माइनस रेडिकल, ठीक है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट में यूज होगा। और ब्राउन रिंग टेस्ट होता किसका है? नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन का होता है। कि अगर कहीं पे मान लो कोई कोई कॉम्प्लेक्स, कोई सॉल्ट दे रखा है आपको, उसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं है, उसके लिए चेक होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर आया ZnO2, है ना, 2-। ये कहाँ से आया ZnO2 2-? अगर मान लो किसी ने कहा कि इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, है ना, तो आप क्या करोगे? whatever minus is there, you are going to write those many plus पहले दो, H2ZnO2 लिख दोगे, ठीक है, ऐसे, राइट। तो एक तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, और आपको याद हो, इसको अगर मैं H2 को यहाँ हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? Na2ZnO2, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। हाइड्रोजन की जगह सोडियम लिख सकता हूं मैं। तो ये कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो ये क्या मिल गया आपको? जिंकेट आयन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, है ना, इसका नाम क्या होगा? जिंकिक एसिड। इसको जिंकिक एसिड भी बोलते हैं ऐसे कॉमनली। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस, है ना। तो ये x हो गया, ये -2 हो गया। x -2 into 2 equals to 0, equals to -2, not 0, because the charge is over here. तो charges कितना है? -2 है। So we are going to write x - 4 equals to -2, and x will be +2.
अगर एनायन के साथ कैटायन होगा तो वो उस कैटायन का नाम लिख देंगे। मान लो पोटेशियम हुआ तो पोटेशियम, सोडियम हुआ तो सोडियम, ठीक है। H हो गया I। अब देखो यहाँ पे ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, Fe 0.93O, तो ये क्या है ना, इट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स। कहाँ पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट में। कहाँ पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट में। होता क्या है, FeO में, FeO है ना, जैसे मान लो ये FeO है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक आयरन की बॉल है लेट्स से, है ना, Fe2 प्लस की बॉल है लेट्स से। वी विल फर्स्ट थिंकिंग अबाउट FeO, है ना, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये आयरन 2 प्लस की बॉल है, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन 2 माइनस की बॉल है लेट्स से, है ना, ऐसे। जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये ऑक्सीजन 2 माइनस है, राइट। तो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट होगा, है ना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, where Fe2 plus is surrounded by oxygen 2 minus and every oxygen 2 minus is going to be surrounded by Fe2 plus, right? Right. So that's how the ionic compounds are there. But इसमें defects क्या आते हैं? This some Fe ions are going to, let's say, leave their places. ये निकल जाएंगे। मान लो पहले 100 ऑक्सीजन Fe एटम थे 100 ऑक्सीजन एटम के करस्पॉन्डिंग, राइट, तभी तो ये FeO बनेगा। तो उसमें होता क्या है, डिफेक्ट्स के कारण कुछ Fe जो है ना, ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, कुछ Fe अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, है ना, दे आर नॉट प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे ये लिखा है Fe 0.93, इसका मतलब क्या है कि भाई 93 आयरन प्रेजेंट है लेट्स से 100 ऑक्सीजन एटम के करस्पॉन्डिंग। समझ में आई बात? पहले तो ये है क्या, और ये कैसे यहाँ तक पहुंचा है वो भी मैंने बता दिया कि कुछ Fe2 plus are going to be missed from their position and that is called defect, ठीक है। अब अगर ये आयरन तो चला गया यहाँ से, लेकिन चार्ज बैलेंस कैसे होगा? हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द चार्ज? ऑक्सीजन तो 100 है, आयरन 93 ही है, बट वी हैव टू डू द चार्ज बैलेंस ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी होना चाहिए कोई भी कंपाउंड के लिए। तो होता यह है कि कुछ आयरन के कंपाउंड, कुछ आयरन के कुछ आयरन के कैटायंस, है ना, Fe2 प्लस वाले कैटायन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसमें? 3 प्लस में। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? 3 प्लस में। इतनी बात समझ में आई? लॉस हो गया ना, 7 Fe गायब हो गए, तो 7 Fe के कारण 14 प्लस का लॉस हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? 14 प्लस का लॉस हो गया। 14 प्लस का लॉस हुआ तो क्या होगा, उस 14 प्लस के लॉस को कौन भरपाई करेगा? Fe3 प्लस, कुछ आयरन Fe2 प्लस, कुछ कितने आयरन Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जाएंगे? 14, क्योंकि एक ही का तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आउट ऑफ 93 the 79 is going to remain in Fe2 plus and the remaining 14 are going to be in Fe3 plus। ये बात क्लियर हो गई? फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, है ना, जिनको नहीं समझ में। पहले कंपाउंड ये था, इसमें एक डिफेक्ट दिखता है। इसमें क्या होता है कि कैटायन, मेटल कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाता है, मतलब भाग जाता है, दैट इज मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन। और उसके कारण क्या हुआ, ये इस तरह का कंपाउंड बना। मतलब 0.93 का मतलब क्या है, 93 Fe है 100 ऑक्सीजन पे। इसका मतलब है 7 Fe2 प्लस आर गायब, है ना, दे आर नॉट प्रेजेंट। तो उसके कारण कैटायन, जो 7 कैटायंस हैं Fe2 प्लस, इसके कारण चार्ज की कमी कितनी आएगी? एक पे 2 प्लस का था तो 7 पे कितना चार्ज हो जाएगा? 14 प्लस। तो 14 प्लस की डिफिशियंसी आ गई। कौन इस डिफिशियंसी को कवर अप करेगा? आयरन खुद करेगा। और कैसे? ऑक्सीडाइज हो गए। तो कुछ आयरन के एटम्स Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में चले गए, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? +1 का। कितना भरपाई करना है? 14 करना है। तो हाउ मेनी Fe3 प्लस आयन आर गोइंग टू बी 14। ये तो एक लॉजिकल तरीका हो गया। किसी को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, so we will say charge balance, we are going to do charge balance।
let's say out of 93 we are going to say that X are Fe2 plus and 93 minus X are Fe3 plus. ठीक है, we don't know what is X, so we will say X पे चार्ज कितना है 2 प्लस का, तो 2x प्लस 93 माइनस X पे चार्ज कितना है 3 प्लस का, 93 माइनस X इंटू 3. ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2 का, तो 100 इंटू 2. क्या होगा टोटल चार्ज 0 हो जाएगा. So let's write 2x plus, right, this is going to be 279 minus 3x minus 200 equals to 0. कितना बचेगा ये 79 minus x equals to 0, x equals to 79. So you are getting, if you are not getting this point है ना, ये नहीं समझ में आया, तो you will do charge balance. तो ये तो थी कहानी जो मेरे को सुनानी थी है ना, so that you can understand कि ये कहाँ से आया और इसमें क्या क्या हो रहा होगा. तो इसमें Fe दो ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में और +3 में. +2 में कितने हैं 79 लेट्स से एटम है आउट ऑफ 93. तो अगर परसेंटेज पूछा जाए व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ Fe2 प्लस, so we are going to say 79 divided by 93 into 100, and here if we are going to ask then 14 divided by 93 into 100. Be careful, यहाँ पे 100 नहीं लिख देना है कि ये 14% है या 79% है, right? You have to check कि आउट ऑफ 93 कितने हैं. ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही. अब बात करते हैं अपने ऑक्सीडेशन नंबर पे. तो अभी आपको याद होगा मैंने बताया था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताया था, यस और नो? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो फ्रैक्शन और इन सब में भी आ सकती है, राइट? एंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने देखा Mn3O4 है ना, ये Mn3O4, राइट? आई विल कम टू दिस पॉइंट अभी. तो Mn3O4 एक्चुअली में है क्या, MnO और MnO2 का मिक्सचर है. तो अगर तुम एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे तो Mn की +4 और +2 और +4 बोलोगे बिकॉज दिस. बट यहाँ पे ये क्या आई +8/3, तो ये +8/3 क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ना. सो दैट इज द एवरेज ऑफ ऑल दोज ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? अगर किसी ने पूछा कि Mn जो है वो यहाँ पे +2 और +4 में प्रेजेंट है, देन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. और किसी ने कहा कि इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 है, देन दिस इज आल्सो करेक्ट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ. या आपको ये भी पता करना है कि यहाँ पे इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और ये भी पता होना चाहिए एवरेज क्या है. एवरेज एक्स वाले मेथड से मिल जाता है. तो लेट्स कम टू अवर पॉइंट. तो अगर कोई पूछेगा कि FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, देन वी आर गोइंग टू से +2 एंड +3 बोथ आर प्रेजेंट इस वाले कॉम्प्लेक्स में Fe0.93O. ठीक है. कोई पूछेगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या लिखेंगे, Fe यहाँ पे X 0.93O -2, that is going to be 0, so we will write 0.93x -2 equals to 0. X is nothing but 200 divided by 93. Just solve it, you will get the answer. तो ये हो गई इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, जो कि 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी. ये 2 पॉइंट समथिंग आने का मतलब क्या है, 2.15 समथिंग आएगी. दैट इज बिकॉज सम Fe are also present in +3 oxidation state. इतनी बात समझ में आ गई भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन नॉट हैविंग एनी अंडरस्टैंडिंग? चलें आगे. ठीक है, ये तो हो गई कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन. एवरेज कहाँ पे यूज होता है ये भी समझ लेते हैं. जब एक से ज्यादा हो और वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो. सो वी विल सी दैट पार्ट. थोड़ा और आगे देखते हैं. ये हो गया. अब देखते हैं O2PtF6. O2PtF6 क्या होगा? तो जो प्लेटिनम है, राइट,
that exists in +2 and +4 oxidation state. प्लेटिनम किस उसका लेट्स से सीरीज किस में आएगा? निकल फैमिली में, है ना? निकल फैमिली में आएगा ये, ठीक है? निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ठीक है? निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो क्या क्या हैं? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4। प्रणवी क्या कह रहे हो बेटा? So 14 electrons are going to be oxidized out of 93 ना? तो उससे आपको फ्रैक्शन पता चल गया। यू कैन राइट लाइक दिस, ये 200/93 क्या लिखा हुआ है आपको? ये लिखा है 2 + 14/93। राइट, तो ये 14 इंक्रीज हुए Fe3+ में। वी हैव टू टेक द एवरेज, तो हम एवरेज निकाल लेंगे। एनीवे, तो प्लेटिनम जो है ना वो +2 और +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? +4 में ये क्या है? -1 में ये क्या है? X है। तो अब बताओ, X +4, सॉरी 2X नॉट X, वो 2 है। तो 2X + 4 - 6 = 0, 2X - 2 = 0, X = +1। ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 में, ओवर हियर। तो ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ होता है, रिमेंबर, ठीक है? राइट, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन है इसके कारण। नाउ लेट्स मूव, चलते हैं आगे। S4O6 2 माइनस S4O6, S4O6 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे तो ये X मेथड से निकाल लेंगे। 4X - 12 = -2 and 4X = +10, then X is nothing but 10/4, or you can say 5/2, or you can say 2.5, right? So this is oxidation number +2.5. How did you know that it was +4 again? Yes, very good. तो ये है क्या actually? Good question. If you are going to see very closely, it is written like this, मतलब PtF4 + O2F2. समझ में आया? So anyway, S4O6 2, और मैंने पहले ही बोला था ये जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ, मैंने अभी दिए हैं, इनमें थोड़े एक्सेप्शंस वगैरह रहेंगे, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। S4O6 2- का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो स्ट्रक्चर वी नीड टू रिमेम्बर, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। Now you can see all sulfurs are not same, है ना? एक जैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आएगी, ठीक है? What is the hybridization of this sulfur? sp3 4 sigma bond. What is the hybridization of this sulfur? sp3. What is the hybridization of this sulfur? sp3. What is the hybridization of this sulfur? sp3. All are sp3. That means the sulfur itself are not going to take any charge from each other, है ना? वो एक दूसरे से कोई भी इलेक्ट्रॉन ना खींच नहीं पाएंगे। तो along this bond कोई चार्ज सेपरेशन होगा? नहीं, है ना? along this bond कोई चार्ज सेपरेशन होगा? नहीं। along this bond कोई चार्ज सेपरेशन होगा? नहीं। तो इन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0।
neither they can pull or lose the electron from this bond, or neither these are going to, let's say this side, है ना, the sulfur is going to pull or lose the electron. बराबर की ताकतवर है ना, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएंगे, राइट? कहाँ कौन छीनेगा? ये जो ऑक्सीजन छीनेगा, है ना, लालची, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? +5. ये क्या होगा? +5. So you can write what is the average? +5, 0, 0, +5 divide by 4. क्या आ जाएगा? 10/4. That's why 2.5. Understood? तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है? 0 and 5. एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5/2. समझ में आया? यहाँ दो चीजें इंट्रोड्यूस हो गई है, एक है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट और एक है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हम लिख सकते हैं. ठीक है, H2O3 2-. So, अच्छा, इसका नाम क्या है? What is the name of this, let's say, ion? तो इसको बोलते हैं थायोनेट. क्या बोलते हैं? नहीं, रुक जाओ. टेट्राथायोनेट. 4 सल्फर. टेट्राथायोनेट. ठीक है, तो लाइक दिस. Now H2O3 2-. ठीक है, इसका नाम मैंने बता दिया, टेट्राथायोनेट. ये आया कहाँ से है? थायोनिक एसिड से आया है. क्या है? थायोनिक एसिड. क्या होता है थायोनिक एसिड? अगर कहीं पे ऐसा है, कुछ ऐसा बन रहा है, राइट? H, that's not O-. तो ये जनरल फॉर्मूला है थायोनिक का. वी आर हैविंग टोटल 4 सल्फर ओवर हियर, तो इसलिए टेट्राथायोनिक, थायोनिक एसिड और टेट्राथायोनिक. ठीक है, चलो ये तो हो गया थायोनिक एसिड. लेट्स मूव ऑन टू H2O3 2-. इसको क्या बोलते हैं? This H2O3 we are going to see a lot. This is called thiosulfate. क्या है ये? Thiosulfate. Right. What is, how is the structure? is structure ऐसा है. If you are going to ask what is the average oxidation state, तो आप निकाल दोगे. Average oxidation number क्या हो जाएगा? ये 2x minus 2 into 3, so -6 equals to -2. So 2x equals to +4 and x equals to +2. This is average oxidation state. But if you are going to see closely, the average oxidation state, है ना, +2 है, but individual oxidation state is going to be different. अब यहाँ पे देखो, ये वाला सल्फर का ऑक्सीडेशन हाइब्रिडेशन क्या है? sp3. और इस वाले सल्फर का अगर निकालना पड़े, लेट्स से, हालांकि टर्मिनल्स का हम निकालते नहीं है, बट द थिंग इज दिस इज रिप्लेसिंग ऑक्सीजन. इसको ऐसा बोलते हैं कि ये कितना सिग्मा बना रहा है? 1 और ये 2, sp2. या तो इसको इस तरह से बोल दो, या फिर ये बोलते हैं कि दिस इज रिप्लेसिंग ऑक्सीजन. इस वाले सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है इस वाले सल्फर से. किस सल्फर से? इस सल्फर से. सो दैट्स व्हाई -2 ओवर हियर. अगर -2 ओवर हियर तो क्या हुआ? इट इज गोइंग टू लूज ऑल 6 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर यहाँ पे क्या है?
that is going to be +6 and -2. ठीक है, तो इस वाले सल्फर को जो है ना -2 दिया गया है, राइट, बिकॉज इट इज रिप्लेसिंग ऑक्सीजन, तो सिमिलर टू ऑक्सीजन, तो -2 आएगा. सो इट इज अज्यूम्ड एज कि ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा. इट इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन. This sulfur is going to lose all the 6 electron, and that's how the oxidation state is +6 and -2. ठीक है, चलें आगे. अच्छा, इसमें एक और हम एक और जोड़ लेते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2. What is the oxidation state of chlorine over here? कोई मुझे बताएगा ब्लीचिंग पाउडर क्या है? मिक्स सॉल्ट है या नहीं है? यस और नो, किसने ये पढ़ा हुआ है? क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या है, किस किस से बना हुआ है? हल रहा अच्छा, लेट्स सी किसको पता है. देखो ये CaCO3 बता रही है लड़की. सर कैल्शियम ऑक्साइड से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये बनता है सर शायद. करेक्ट, ये इस बात सही है, बट मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ. मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस ये मिक्स सॉल्ट है ना? अगर वो रिएक्शन आपको याद होगी, जो कि नहीं है, याद है क्या? CO + Cl2. किसी को याद है? थोड़ी सी याद है. तो एक्चुअली ये बनता क्या है मैं बता दे रहा हूँ. CaCl2 बनता है एंड CaOCl होल ट्वाइस बनता है. कोई इन दोनों के नाम बता देगा क्या? हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. यस, सो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स कर दो तो ये क्या बनेगा? Ca2O2 Cl4 क्या बन जाएगा फिर? CaOCl2, राइट. इन दोनों का मिक्स सॉल्ट है ये. ठीक है, अब देखो यहां से यही बात समझ में आती है. अगर मैं बोलूं व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ओवर हियर, तो वी आर गोइंग टू से कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो +2 -2 + 2x = 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी 0. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज 0. बट इफ यू आर गोइंग टू चेक वेरी क्लोजली ओवर हियर, तो क्लोरीन के किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? CaCl2 में है -1 में, है ना, +2, तो ये क्लोरीन क्या हो गया? -1. और यहाँ पे ये OCl का -1 है, तो वहां पे ऑक्सीजन -2 है, तो क्लोरीन क्या हो गया? +1. कितनी बात समझ में आई? CaOCl होल ट्वाइस x -2 sorry +2 -2x, right? So you will say +2, will say +2 + 2 into -2 plus x = 0. Then you are going to say +2 plus ये हो जाएगा -4 plus 2x = 0. तो ये क्या हो जाएगा? 2x = 2 and x = 0. तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने जाऊंगा तो क्या मिलेगी? +1 and -1. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ठीक है भाई, कोई दिक्कत?
ये हो गया। ये क्या है? दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, तो पढ़ लिया होगा, करेक्ट, राइट। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? +1, राइट, बिकॉज इट इज 0, तो ये यहीं पे लिख दिया। ये क्या है, कोई बताएगा? ये आपने कहाँ देखा है? लसेग्ने टेस्ट में, नाइट्रोजन के डिटेक्शन में। क्या बोलते हैं इसको? कलर क्या है? अच्छा कलर बताओ इसका, इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है? कैनरी येलो, देखो तो रेड, कैनरी येलो मिलता है फॉस्फोरस के डिटेक्शन में, ये देखो लड़के ने याद नहीं किया ना। और रेड मिलता है आपका सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होता है, FeSCN होल थ्राइस, ब्लड रेड कलर। वॉयलेट, वॉयलेट कलर बनता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में, मतलब वो कलर छोड़िए, सब लसेग्ने टेस्ट के सारे कलर बता दिए इन लोगों ने। ब्लू, कौन सा कलर होता है? ब्लू, क्या बोलते हैं इसको? प्रूशियन ब्लू, याद आया? ठीक है, तो ये हो गया Fe4 FeCN6 थ्राइस। ठीक है, चलते हैं आगे। लेट्स सी, Fe4 FeCN6 थ्राइस। अब देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसमें आपको याद रखना है कि ये जो दो स्फीयर हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो आयनिक होता है हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर। जैसे आप यहाँ पे लिखो K4 FeCN6, तो आप आसानी से इमेजिन कर सकते हो, राइट। सो यू आर गोइंग टू से दिस इज गोइंग टू ब्रेक एज 4K+ एंड FeCN6 4-। कहीं पे भी देख लो, है ना। ये जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू राइट लेट्स से Na2, अब ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हमने पढ़ा है ना, CN5NO, राइट, ऐसा जो भी है, then we can see this is Na+ and remaining is going to be minus। तो कभी कभी क्या होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दिख जाता है, जैसे हमने यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट में देखा है ना, ये प्लस और ये दोनों बातें सेम ही है। अगर मान लो कहीं पे ये लिखा होता Cl, है ना, इट इज सेम थिंग। कितनी बार समझ में आ रही है? इनके बीच में जो बिहेवियर है दैट इज आयनिक, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री आयन, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और यू कैन से कोऑर्डिनेट आयन, कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये सब, ठीक है। एनीवे, आई कम टू दिस पॉइंट। तो अगर ये आयनिक है, तो आयनिक में आपको क्या याद रहता है? व्हाट यू कैन रिमेंबर, कि वहां पे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको 4 कैसे मिला होगा? जब इस पे 4 होगा, और इसको 3 कैसे मिला होगा? जिस पे 3 होगा। तो आपको पता चल गया इस पे चार्ज क्या है, -4, इस पे चार्ज क्या है, +3। समझ में आया ये बात? यस और नो, है ना। आज बहुत सारे लॉजिक एक साथ आ रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं यहाँ पे अंदर, है ना। इस वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमें पता चल गई +3। मान लो कोई कहे अंदर वाले की कितनी होगी, देन यू कैन अप्लाई x मेथड, x -1, व्हाट इज गोइंग टू हैपन यहाँ पे, x -6 इक्वल्स टू -4, x विल बी +2। तो ये क्या हो जाएगा, +3 एंड दिस इज गोइंग टू बी +2। इसीलिए इसको क्या और बोलते हैं, फेरी फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरी फेरोसाइनाइड और प्रूशियन ब्लू। इसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, है ना।
कॉम्प्लेक्स का कलर, तो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कलरेशन देते हैं, कलरेशन देते हैं, क्या देते हैं, कलर देते हैं, है ना, सॉल्युबल होते हैं, राइट, दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। फेरी फेरोसाइनाइड का मतलब क्या है, फेरिक +3 में है तो पहले कौन आया, फेरिक, अंदर वाला +2 में है तो फेरस, फेरी फेरो साइनाइड ऐसे नाम आया। अब जो दूसरा है ना, वो इसका साथी है, उल्टा है, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे ये उल्टा है, यहाँ पे दिस इज +2 एंड दिस इज +3, इसको बोलते हैं टर्न बुल ब्लू, है ना, नाम कैसे है, टर्न बुल ब्लू, और यू कैन से फेरो फेरी साइनाइड, फेरो फेरी साइनाइड, ये भी क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं आयरन पायराइट, क्या है ये, आयरन पायराइट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड, क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड, सो इट लुक्स लाइक गोल्ड बट इट इज नॉट गोल्ड, ठीक है, FeS2। अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछा है, सल्फर का पूछा है, सो यू कैन हैव सम आइडिया कि, है ना, अगर आयरन का पूछा होता तो कई लोग तो -4 लिख देते, राइट। तो ये जैसे हमने परऑक्साइड बोला था वैसे ही है, ये पर सल्फाइड है ना, O2 2- होता है ना, वैसे ही यहाँ पे ये +2 एंड दिस इज -1, याद रहेगा। ठीक है, ये क्या है, PPH3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस के साथ 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है ना, क्यू, चलो क्यू क्यू बता दो, ये दोनों समझ में आ गए, ये लिख लेना यार, मैंने नीचे नहीं लिखे हैं, है ना, दिस इज फेरो फेरी साइनाइड। इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व, जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया वैसे ही करेंगे, तो ये +2 आएगा और ये +3 आएगा, राइट, यहाँ से चेक कर लेना, राइट, ये 2 है तो +2 आ रहा है। आयुष H2O3 2- को बीते हुए बहुत टाइम हो गया, इसमें क्या नहीं आ रहा है, कुछ लोग धीरे धीरे निकल लिए, है ना, आधे घंटे बाद उनको मजा नहीं आया। अच्छा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है, बहुत कुछ है ना। ठीक है, ये देखो PPH3, राइट, दैट इज अनदर लिगेंड, जैसे NH3 होता है ना, वैसे ही है। आप सबको तो पता है कि वी कैन रिप्लेस हाइड्रोजन विद, लेट्स से CH3 से रिप्लेस कर सकते हैं, PH से रिप्लेस कर सकते हैं, PH इज बेंजीन रिंग, राइट ना, जैसे PH3 होता वैसे ही क्या है यहाँ पे ना, सिमिलर टू दैट वी आर हैविंग PPH3, कैसे दिखेगा, ऐसा, राइट, लुक्स लाइक दिस। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर, तो यहाँ जो ये फॉस्फोरस है ना, या ये जो बेंजीन रिंग है, विच इफेक्ट दे आर शोइंग, बताओ भाई, ये बेंजीन जो रिंग है ये कौन सा इफेक्ट शो कर रही है, +I -I, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन दे रही है फॉस्फोरस को, कार्बन और, अच्छा, फॉस्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कार्बन और फॉस्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू 2.2 समथिंग है, कार्बन की 2.54 है, वो भी sp3 में, sp2 है ये दो, इट इज गोइंग टू बी फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। So that means these benzene, anyway benzene ring always show -I effect, हमेशा ये खींचते ही है इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है then they are showing -I effect, yes or no, ठीक है। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहे हैं,
है ना. तो बेंजीन रिंग इज शोइंग -I and -M. समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं ना फॉस्फोरस से. लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है. हाँ भाई, राइट. ठीक है, तो ये पुल कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूप यहाँ से खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा. फॉस्फोरस ने कितने इलेक्ट्रॉन गंवा दिए बेचारे ने? 3 + 3, है ना. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक पूरी जो रिंग है क्यूमुलेटिव रिंग, दैट इज शोइंग -1. ठीक है, तो ऐसे या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, इन पूरे का क्या आएगा, -1. सो दैट्स हाउ यू आर एबल टू गेट. सही है. चलो आगे. PPH3 हो गया भाई. और कहाँ है? NCl3 एंड NOCl, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लेट्स मूव टू दिस पार्ट. तो ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा याद रखना है. NCl3, नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बहुत कंपेरेबल है. इनफैक्ट क्लोरीन की थोड़ी सी ज्यादा है. ठीक है, क्लोरीन की थोड़ी सी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बट ज्यादा है. बट इन बोथ केसेस NCl3 का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा. राइट. तो NCl3 का स्ट्रक्चर इस तरह से है. एंड व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि ये Cl जो है ना, ये लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये क्लोरीन जो है इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, राइट. सो दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, रुक जाओ. नहीं, हाँ सॉरी. ये स्ट्रक्चर ऐसे है, इसमें ये एक्सेप्शन है. सो यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो बिहेवियर है उसका उल्टा आता है यहाँ पे आंसर. वो होता क्या है, उसको समझाते कहते हैं कि NCl3 को जब पानी में डाला जाता है, राइट, व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड इनटू वाटर, then we are saying this is going to convert into NH3 and this is going to convert into HOCl. ऐसे ये ब्रेक होता है HOCl. ठीक है, how this is going to happen, मतलब ये ऐसा कैसे हो रहा है. ठीक है, so it is like this. ये कैसे हो रहा है, पहले मैंने बताया एक्सेप्शन है, तो you have to remember it. ये इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. सॉरी, ये Cl है. यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज इंटरेक्टिंग विद द हाइड्रोजन ओवर हियर. कौन सा इंटरेक्शन होगा, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड. कैन यू रिकॉल दिस? हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नाइट्रोजन कैन फॉर्म, है ना. सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. ये इसके साथ खींचना चालू हुआ तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा. कैसे टूटेगा? माइनस से. जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड भी टूटेगा, राइट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वी कैन राइट लाइक दिस, कि ये इसके साथ निकल गया तो क्या बना, HOCl. अब ये माइनस था तो ये कैसे होगा, प्लस में, राइट. तो इसलिए यहाँ पे ये Cl +1 में जाता है, राइट. ओवर हियर दिस इज Cl इज +1 एंड नाइट्रोजन इज इन -3. उल्टा हो गया है ना. सो बी केयरफुल. यहाँ पे Cl जो है वो +1 में और नाइट्रोजन इज अंडरस्टैंड एज -3, है ना. या फिर याद रख लो कि NCl3 से NH3 बन रहा है, NH3 में ये -3 होगा, +1. So rather than +3 it is -3 over here. But when we are saying NOCl, NOCl कैसे ब्रेक होता है? How it is going to break as an NOCl, NO plus Cl minus. तो यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो नाइट्रोजन का कितना होगा? X. -3 equals to 0, then X is +3. So यहाँ दोनों एक्सेप्शन है, ये अपोजिट नेचर है. So how you are going to remember that, you need to remember
NCl3 से हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये बना NH3, 3 टाइम्स H2O, एक एक H2O जो है एक एक Cl उठा के लेके जाएगा, राइट। तो ये HOCl बनेगा। HOCl में क्लोरीन +1 में है, एंड दैट्स हाउ द वी आर सेइंग दिस क्लोरीन इज इन +1। ठीक है, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है ना? तो इनको याद करने का ट्रिक बता दिया। ये NO+ बना, Cl- बना, सो Cl -1 है, एंड देन यू कैन राइट। चले आगे। ठीक है, और अब कौन सा रह गया? NCl3 NOCl हो गया। फिनाइल PH N2Cl एंड CaCN2। ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड राइट जीरो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दिस रिंग दिस इज लाइक रिटन लाइक दिस, है ना? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर ये मैं N2+ लिखूं, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? ये कंपाउंड का नाम नहीं बताया मैंने बताया एक बार, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? डाईएजोनियम सॉल्ट। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये डाईएजोनियम सॉल्ट में जो N2 है इसका नेचर क्या है? वेदर इट इज -M -I +M +I, क्या है ये बताओ भाई, कौन बताएगा? So let's draw over here. मैं इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ so that you can face little bit understanding. Okay, this is a structure. -I, correct. अच्छा, और क्या होगा +M -M में? नो मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो तुम लोगों का ऐसे लगी पड़ी है ना +M -M की। अब ये बताओ इसके पास लोन पेयर है क्या? इस नाइट्रोजन के पास है क्या? पहले ही बताओ, यस और नो। तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? ये तो खींचेगा ना। सही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाया ना? कोई दुखी तो नहीं है इस बात से? ये क्या बना दिया? सही है, पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको क्या समझाया था? हाउ आई हैव टोल्ड यू कि भाई +M -M कैसे देखेंगे? फर्स्ट है ना, फर्स्ट एलिमेंट if it is having lone pair it is going to show +M effect. First element attached to benzene ring if it is having pi bond it is going to show -M. तो ये क्या कर रहा है? -M इफेक्ट दिखा रहा है, -I दिखा रहा है। क्या कर रहा है? पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? फिनाइल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? लूज कर रहा है ना? सो दिस इज गोइंग टू +1, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट?
सो फिनाइल इज +1, इट इज लूजिंग। ये -1 है, तो इसका क्या होगा, x एवरेज निकाल लेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, +1 + 2x - 1 = 0, देन x = 0। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आती है बात, नेक्स्ट है CaCN2। CaCN2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? Ca2 + CN2 2 - CN2 2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस। एवरीवन इज हैप्पी, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन खुश है, सही है ना? Can you tell me what is going to be, let's say over here, oxidation state? -3 से 2 खींच रहा है, -3 + 4 बस। तो यहाँ पे बस ये बात याद रखनी थी कि कार्बन का क्या आएगा। अगर मान लो कार्बन का पूछा होता तो +4 है ना। वी हैव डन स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे ना, Ca2 + CN2 2 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा माइनस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको एवरेज और क्या कहते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, एक और कंपाउंड लिखता हूँ, एक और है ना, इसको बोलते हैं फेरोसीन। फेरोसीन क्या होता है? फेरोसीन Fe now this symbol is just telling you, this is nothing but this symbol is tells you with how many, let's say, atoms एक मिनट C6 नहीं है, C5H5 राइट। ठीक है, ये है कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी लेट्स से कार्बन एटम द आयरन इज अटैच्ड, है ना, इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, द टर्म इज कॉल्ड एज हेप्टेसिटी, आगे हम देखेंगे, बट दिस इज द लेट्स से कॉम्प्लेक्स। अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आया ये, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो अभी के लिए, FeC5H5 whole twice. Now what is going to be, let's say over here, what is going to be oxidation number state of iron? बताओ भाई क्या होगा? Whether it is going to be 0 or it is going to be +2. So it is going to be +2. +2 that means it is -1. अब -1 को हम लिखेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? Right? This is the compound. This is aromatic. So that's why the C5H5 wants to have minus charge or not?
क्या ये रिंग ऐसे ज्यादा स्टेबल है या ऐसे ज्यादा स्टेबल? ऐसे ना, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू बी +2? इसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। कैसे? एक रिंग ऊपर 5 मेंबर, फिर बीच में Fe2+, फिर ऐसे एक और नीचे एक ऐसे बीच में, ठीक है। तो ये तो हो गए भाई थोड़े बहुत ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस, और बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। नाउ किसी में अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आधे लोगों को भूख लग गई, चलो भाई खाना खा लो। आई एम गिविंग यू हाफ एन आवर ब्रेक, ठीक है? फिर उसके बाद 1 घंटा और पढ़ाऊंगा, चलेगा? कॉलेज? कौन सा कॉलेज भाई, हाथ दो फिर कोई ब्रेक ब्रेक नहीं होगा। यस सर, साइकोलॉजी का लेक्चर है। ओके, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ओके, टेक 5 मिनट्स ब्रेक। So now we have already understood what is oxidation number and how to calculate oxidation number. Now we are going to talk about the behavior of compounds, whether they are going to behave as oxidizing agent or reducing agent. So there are two important terms. First one is oxidizing agent. तो मैंने पहले ही जैसे बताया आपको, from the name itself you just have to remember agent, है ना? So the compound or substance which oxidize others and reduces itself, those are going to called as oxidizing agent, ठीक है? क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट? सो KMnO4, the Mn is already in highest possible oxidation state. There is only one way it can go, it can reduce, है ना? सबसे ऊंचाई पे बैठे हुए हो, इसके बाद बस नीचे ही गिर सकते हो, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर कैन ओनली डिक्रीज। तो जो भी कंपाउंड्स हैं वो जिनको अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? So we can say KMnO4, K2Cr2O7, these are very very famous one. K2Cr2O7, HNO3, so K2Cr2O7 और K2CrO4, है ना? So same, right? So what is the difference in these two? होता क्या है, जो K2Cr2O7 है, that is actually in acidic medium, और जो K2CrO4 है, या CrO4 बोलना चाहिए, that is in basic medium. मीडियम का फर्क है, right? If it is going to be more basic तो ये CrO4 में चला जाएगा, बाकी दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब एक तरह से ये डाइमर टाइप हो गया, राइट? CrO4 2- से Cr2O7, anyway. So KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, and you can say take Cr in, let's say, any, not only this, you can take CrO3, CrO2, Cl2, all these are going to be good oxidizing agent. H2SO4, all halogens, X2, means you can say F2, Cl2, Br2, है ना? I2, etc. हेलोजेंस क्यों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे?
क्योंकि दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं ना, देयर टेंडेंसी टू रिड्यूस देमसेल्फ, है ना। F2 से F माइनस बनना चाहेंगे वो, Cl2 से Cl माइनस होना चाहेगा, Br2 से Br माइनस होना चाहेगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस 3 बजे खत्म कर देंगे, ओके, डोंट वरी। इतना ही पढ़ाएंगे जितना पढ़ना चाहोगे, राइट, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। और क्या हो सकता है, अभी जैसे मैंने बताया PbO2, है ना, PbO2 इज गोइंग टू बी, है ना, +4 में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे कई सारे कंपाउंड दीज आर गोइंग टू बी, है ना। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, कंपाउंड इन विच, है ना, एनी एलिमेंट is present in its highest possible oxidation state, है ना, can only behave as oxidizing agent। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके बाद वो नीचे, है ना, दैट इज गोइंग टू the oxidation state is only going to decrease, that means it is going to reduce, and it is going to reduce, that means it is behaving as oxidizing agent। तो ऐसे समझ में आ रहा है? Any problem in this part? Oxidizing agent, कहानी बिल्कुल सिंपल सी है ना। एजेंट का मतलब है which is going to work for others, so oxidizing agent का मतलब हो गया जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो खुद रिड्यूस होने को ऐसे और दूसरे तरह से क्या समझ सकते हो कि जो सबसे ऊपर है वो तो बस नीचे गिर सकता है, बस, है ना, दैट इज द ओनली वे। सो द ऑल दोस कंपाउंड्स आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हो कि H2 जो है ना, H2 में क्लोरीन जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, बट इट इज स्टिल बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कंपाउंड अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, है ना। अगर कुछ होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। इसके अलावा कोई अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, राइट, बिकॉज इट वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। ऐसे PbO2 के साथ आप O3 भी लिख सकते हो। ओजोन इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनफैक्ट जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, ब्लीचिंग एक्शन या फिर डिसइंफेक्टिसाइड का जो एक्शन होता है वो है क्या, दैट इज दे आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज द बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट की तरह। ओजोन जो है ना वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है ना, स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं, क्लोरीन को भी डालते हैं, सुना ही है ऐसा कुछ। अच्छे पूल होते हैं जो महंगे वाले, उनमें ओजोन डालते हैं, सस्ते वालों में क्लोरीन डाल देते हैं। ठीक है, सो दैट इज दे आर ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करेंगे। चले आगे भी, स्विमिंग पूल में डालते हैं, यस यस, है ना। जब आप वाटर पार्क में जाते हो तो आपको वो स्मेल आती है ना, वो क्लोरीन की होती है मेनली, उसके पानी में से। उनको तो करना ही है ना, इतने लोग गए हैं, देन दे हैव टू दिस लाइक हैव टू मिक्स क्लोरीन, तो काफी क्लोरीन डाल के रखते हैं वो। चलते हैं आगे। रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, कंपाउंड विच रिड्यूसेस अदर्स।
others and oxidize itself. ठीक है, अब ये reduces others and oxidize itself में कौन हो सकता है, बताओ भाई कोई, give me examples. All metals, है ना, all metals wants to oxidize themselves, है ना, plus oxidation state में जाना चाहते हैं. All metals, let's say we can write sodium, potassium, calcium, है ना, aluminium, anything, Fe, etc. सबको भैया ऑक्सीडाइज होना है, राइट, तो ये दूसरों को रिड्यूस करेंगे, राइट. और कौन, और जो सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, जैसे H2S -2 में है, HCl -1 में है ना, मीन्स हाइड्रा एसिड्स. हाइड्रा एसिड्स. और जो आपको याद रखना है दैट इज Na2H2O3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइपो, ये दिखेगा आपको हाइपो. एंड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड दिखेगा, ये इसको बोलते हैं हाइपो. ये क्या है, सोडियम, है ना, थायोसल्फेट, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, हाइपो. ठीक है, so Na2H2O3, H2C2O4, all these are going to be, है ना, reducing, let's say, agent. और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हो गए, एक्सेट्रा. नाउ यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, and the compounds in which elements are present in in lowest possible oxidation state, है ना, will behave as only reducing agent. ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं which can behave both as both oxidizing as well as reducing agent. यहाँ पे नोट, another, certain compounds can behave as both oxidizing as well as reducing agent. तो ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसे एग्जांपल कौन है, जो बीच में, जो जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल मिडिल में हो, है ना, दैट कैन बी. तो लेट्स से एग्जांपल है, सबसे पहले H2O2. H2O2 can convert into H2O or can be converted into O2. -1 can go to 0, that is oxidation. अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है. एक मिनट ऐसे लिखते हैं. अगर H2O2 -1 से, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ओहो सॉरी, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो रहा है, -1 से -2 में जा रहा है.
ठीक है, 0 से -2, और O2 में जाएगा तो 0 में जा रहा है, दैट मीन्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। -1 से 0, -1 से 0 गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, -1 से 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडेशन और दूसरों का रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट। -1 से -2, that means as oxidizing agent. Similarly, you can write for CO. So this CO can go to 0 carbon, so as a oxidizing agent, can go to as a CO2 as a reducing agent. ठीक है, similarly we can say sulfur. Sulfur can go to H2S, or sulfur can go to, let's say, SO2. So 0 से -2, that is खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मींस रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे हैं ना, एटसेट्रा। NO2 माइनस, so we can say N2 and +3. N2, or you can say NS3, कहीं पे भी जा सकता है, 0 और -3 है ना, और NO2 is going into NO3 minus, that means +5. so ये +3 से 0 जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +3 से +5 जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे एटसेट्रा बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, बोथ वे पॉसिबल है, तो हम कहेंगे Zn and Al oxides, मतलब Zn और Al के जो ऑक्साइड होंगे उनमें ऑलरेडी एल्यूमिनियम पहुंच गया ना हाईएस्ट में, so it cannot be, let's say, both ways in here. इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? मतलब आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात होता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। शॉर्ट में समझा देते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहला कौन सा है? दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है डाउट? एक मिनट ऊपर कर दें, ओके, लेट्स से ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है दो चीज कंबाइन हो रही है ना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है Mg plus O2 is going to convert into MgO। So this is 0 0, ये +2 में हुआ और ये -2 में हुआ। So that is, है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ Mg का एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है। ऐसे ही Mg plus N2 ऐसे लिख लेंगे तो Mg3N2 बन जाएगा। ठीक है,
ये कॉम्बिनेशन में। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ हो सकती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे लेट्स से H2O2 is going to convert into H2O। ये मैं वाली रिएक्शन दूसरे उसमें बताऊंगा। लेट्स से वी विल राइट KClO3। ठीक है, KClO3 is going to convert into KCl plus O2। तो यहाँ पे KClO3 में Cl +5 में -1 में जा रहा है, ऑक्सीजन -2 में 0 में जा रहा है। Cl का हो गया यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर कहीं पे लिखा है Ag2O, if you are heating it, it is going to convert into Ag plus O2। ठीक है, सो देन ये +1 से 0 में जा रहा है और ये -2 से 0 में जा रहा है, राइट। So that is decomposition reaction, but all decomposition reactions are not redox reaction। यहाँ पे लिख सकते हैं no, all decomposition reactions are not redox reaction। In fact this is true for everywhere, है ना। जैसे combination reaction लिखी है हमने, वहां पे भी यही है, all combination reaction cannot be, है ना, redox reactions। ठीक है, चलते आगे। थर्ड is called displacement reaction, and in that we are having metal displacement। ये सबको पता है मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट। जिंक और कॉपर वाली रिएक्शन, Zn plus CuSO4 is going to convert into ZnSO4 plus Cu। तो यहाँ Zn जो है वो +2 में जा रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड Cu +2 से 0 में जा रहा है, दैट इज रिडक्शन। समझ में आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं हूँ इस बात में। आई फील लाइक ये वाली सब रिएक्शंस आपको पता है, नाम से भी समझ में आ रहा है। फिर आती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल्स will displace less reactive metal from salt, from its salt। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, stronger oxidizing agent will displace weaker oxidizing agent। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, कहीं पे लिखा है NaI और यहाँ पे लिखा है H2, तो ये क्या बना लेगा, NaX plus I2। अब ये X कौन कौन हो सकता है, over here X can be chlorine, bromine, chlorine and fluorine। क्यों? क्योंकि F2 is more powerful than Cl2 and Cl2 is more powerful than Br2 and Br2 is more powerful than I2। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर में लिख दे रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर, पावर टू ऑक्सीडाइज अदर। यहाँ खुद के लिए कुछ टर्म यूज नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सब दूसरे के रेफरेंस में बोली जा रही है। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है,
इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इट इज विद रेस्पेक्ट टू अदर. तो F2 can oxidize others more strongly than comparison to chlorine. तो NaI को कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कौन कौन डिस्प्लेस कर सकते हैं आयोडीन को यहाँ पे, है ना. Then it can be, let's say, displaced by bromine, chlorine and fluorine. अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा होता है let's say NaBr, तो यहाँ पे X क्या होता, is going to be chlorine and fluorine only, है ना. Iodine cannot do that, आयोडीन से नहीं हो पाएगा भाई, है ना. ऐसे ही NaCl लिखा होगा तो यहाँ पे X कौन होगा, that is only fluorine. Now this is the basis of layer test. This is the basis of ये लेयर टेस्ट पढ़ा है तुम लोगों ने, है ना. एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड्स में पढ़ा होगा, लेयर टेस्ट नहीं पढ़ा है, बता देते हैं. जैसे अभी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ रहे थे, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, फॉस्फोरस, ये सब पढ़ रहे थे, राइट. वैसे ही होता है एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड्स. तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि वो परसेंटेज क्लोरीन कैसे निकाल सकते हैं, AgCl का प्रेसिपिटेट लेंगे फिर निकालेंगे, वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, परसेंटेज क्लोरीन वगैरह निकालने का, राइट. यस ना, सबने पढ़ा भाई, हाँ ठीक है. तो अब ये भी होता है कि ये पता कैसे करें कि कौन सा वाला हेलोजन प्रेजेंट है. तो करते क्या है, ठीक है, पानी में जैसे मान लो कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, राइट. तो क्या समझाऊं, वी आर गोइंग टू टेक अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, हम CCl4 या CH2 लेते हैं, ठीक है. तो ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो उनमें कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये Br2, Cl2, दीज आर नॉन पोलर, राइट. सही है. तो जैसे अगर मान लो हमें पता लगाना है कि यहाँ पे NaBr है या नहीं, Br माइनस है या नहीं, लेट्स से वी वांट टू डू दिस, तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को CCl4 के साथ डालते हैं, तो उसमें दो लेयर बन जाती है, एक पानी की लेयर और एक, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर, बिकॉज दीज आर इमिसिबल टू ईच अदर. पानी में क्या होगा, पानी में तो ये सोडियम का सॉल्ट सॉल्युबल होगा, तो जब आप क्लोरीन डालोगे, है ना, और क्लोरीन का कलर जैसे अगर हम देखें तो थोड़ा येलोइश ग्रीन जैसा रहता है, ठीक है. तो वो जो कलर जाएगा पानी में, राइट, अगर मान लो कलर जो है पिंक की तरफ शिफ्ट हो गया, वो कलर डिसअपियर हो गया और पिंक की तरफ कलर शिफ्ट होने लग गया, पिंक या फिर रेड ब्राउन टाइप कलर शिफ्ट होने लग गया, देन वी विल से कि ब्रोमीन इज प्रेजेंट. समझ आ रही है बात. अगर मान लो वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होने लग गया, वॉयलेट, तो हम कहेंगे आयोडीन इज प्रेजेंट. वॉयलेट और डार्क ब्लू होने लग गया, देन वी आर गोइंग टू से आयोडीन इज प्रेजेंट. तो ये लेयर टेस्ट का मतलब ये होता है, यहाँ पे दो लेयर होती है, CCl4 एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते हैं जिसमें ये हेलोजेंस आर गोइंग टू बी सॉल्युबल, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू एस्टिमेट कि कलर क्या बन रहा है. अंडरस्टूड? हाँ, समझ में आया, ठीक है. तो ये तो हो गया, ये बेसिस है लेयर टेस्ट का. और इसके बाद आती है एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नेक्स्ट, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे. किसी को पता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? एनीवन? हाँ, बट मेनी पीपल आर सेइंग दे वांट टू गो, है ना, वो नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना आज जो पढ़ाया है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्टे, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन गो. जिसको डाउट नहीं जा सकता.
एक मिनट डाउट ले रहा हूँ मैं। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे को टेस्ट के क्वेश्चंस में डाउट थे तो मैंने आपको भेजा है। अच्छा भेज दिया क्या? हाँ Fixed mass of ideal gas contained in 10 liter sealed resid vessel at 1 atm is heated from -73 degree Celsius to 27 degree Celsius. मतलब 200 से 300 केल्विन तक है. Which of the following represents the change in Gibbs free energy if the entropy is the function of temperature as like this. ठीक है. 10 लीटर वेसल में है, 1 atm पे है, हीट कर रहे हैं. So 200 to 300 केल्विन. सर पता नहीं एग्जाम में मेरे को ये नहीं हुआ, स्ट्राइक नहीं हुआ। कोई बात नहीं. तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है एंड फिक्स मास है 10 लीटर है, 1 atm है. सो वी कैन कैलकुलेट P into V दे रखा है, राइट? ओवर हियर. एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 200 Kelvin to 300 Kelvin. Rigid vessel है, that means shape is not changing. ठीक है. चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी निकालना है. So what we can do is we can calculate S. पहले तो हमें यही पता है. What is going to be change in delta S क्या हो जाएगा यहाँ पे? So that has given as delta S is nothing but the function is given as S plus S to R minus 2. नहीं sorry 2 plus 10 to R minus 2 T जूल पर केल्विन है ना. And 1 atm liter equals to इन्होंने लिखा है 0.1 kilojoule, right? So anyway, what we are going to do, we are going to say कि S300 minus S200 क्या है. So that is 200 से 300 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दो. So that is going to be delta S. ठीक है, delta S मिल गया आपको? हाँ सर। ठीक है. Now what is going to happen, इसको निकाल लो कैसे. ये हो जाएगा 2T प्लस dt के हिसाब से करेंगे तो just you are going to solve it. अब मेरे को ये क्या बताओ, ये से Q निकाल सकता हूँ क्या? सॉरी इंटीग्रेट नहीं करना है मुझे, सॉरी आई डोंट हैव टू इंटीग्रेट इट क्योंकि इन्होंने फंक्शन टी के टर्म्स में दे रखा है ना. सॉरी S300 is going to be 2 plus 10 to R minus 2 into 300 and S200 is nothing but 2 plus 10 to R minus 2 into 200 and then we will solve it. तो इससे नहीं करना है anyway.
ठीक है, तो इससे हम ये निकल जाएगा. अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट over here. We are not using हमें डेल्टा एच निकालना है, राइट. डेल्टा एच इज गोइंग टू बी फॉर आइसोबारिक सिचुएशन में क्यू. नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं, इससे नहीं करेंगे. मैं डेल्टा एच के लिए फिर बहुत घूम जाएगा. लेट्स से और कौन सा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का फॉर्मूला. डेल्टा जी वी डी पी माइनस एच डी टी. तो अगर डीपी अगर देखें यहाँ पे ये रिजिड वेसल है और कुछ दे नहीं रखा है. Only we are changing the temperature, so we are going to say this is going to be 0. इसको दो करूँ. Delta G is nothing but minus S dt. इससे आएगा क्या? इससे चेक करो एक बार. हाँ सर. मतलब कुल मिला के हमें ये निकालना था. यहाँ से तो बात बन नहीं रही है, राइट. क्योंकि क्यू नहीं निकल पाया. मैं सोच रहा था कि कैन बी रिलेट विद क्यू. क्यू निकाल सकते हैं. क्यू आई थिंक निकाल तो सकते होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. इससे ट्राई कर लो, इससे निकलना चाहिए. तो डी जी डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस एस डी टी. तो एस की वैल्यू रख दो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो. The velocity of de Broglie wave is given by. So the velocity of de Broglie wave. So what we have to write is h by md. Lambda is nothing but h by md. And they have given energy is nothing but mc square is nothing but hc by lambda. तो यहाँ पे mb square is nothing but hc by lambda. ये इससे जोड़ा था इन्होंने ना. ऑप्शन देख ले रहा हूँ मैं. c square by v. v is mu is frequency over here. ये तो नहीं होगा है. c square by mu. सर पहले ऑप्शन में v मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए बोला है. मेरे को तो वही लग रहा है, फ्रीक्वेंसी ही होना चाहिए. क्योंकि लास्ट ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ अलग से दिया ना, इसके लिए मेरे को लगा. अब ये वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो v तो नहीं लिख सकते ना. यस है सर. ना. तो यही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन होगा म्यू इनटू लैम्डा. क्योंकि ये तो वेलोसिटी होता ही है ना. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? राउंड पर मिनट या साइकिल पर मिनट, साइकिल पर सेकंड, राइट. ठीक है. यस सर. So now how many cycles are going to happen? So we are going to say distance covered in 1 second. ठीक है. Divide by distance in 1 cycle. These are that is nothing but number of cycle ना. तो नहीं तो हम सिर्फ डायमेंशन से आंसर कर सकते हैं. हाँ, डायमेंशन से भी कर सकते हो, क्योंकि चारों का डायमेंशन अलग अलग आ रहा है. तो ये सिंगल चॉइस है ना. तो ये आ जाएगा म्यू लैम्डा.
ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड क्या हो गया है आपका, स्पीड इनटू टाइम, टाइम 1 सेकंड हो गया। आपको स्पीड निकालना था, ये फ्रीक्वेंसी लिखा है न्यू, और ये डिस्टेंस इन 1 सेकंड लैम्डा है, तो न्यू इनटू लैम्डा इज स्पीड। ये किसी के लिए भी वैलिड है, मतलब जरूरी नहीं है, किसी के लिए भी, ठीक है। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट में एक डाउट है। ऑर्गेनिक आई थिंक यू शुड आस्क SACH सर, ठीक है। एंड पार्ट द सेइंग सर प्लस आई थिंक इट्स आइसोकोरिक, पिछले वाले एग्जाम, पिछले उसके लिए, हाँ, बिकॉज इट इज रिजिड ना, दैट्स व्हाई रिजिड, यस। एक मिनट, सर वो जो ऊपर वाले जो डेल्टा जी निकालने वाले क्वेश्चन में वहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस है ना सर वो? यस वो रिजिड है एक्चुअली में, तो रिजिड का मतलब यही होता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। हाँ सर, तो वो डीबी वाली टर्म जीरो नहीं होगी ना, मतलब प्रेशर तो चेंज होगा ना उसमें। यस रिजिड है तो प्रेशर चेंज होगा, यस टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर चेंज होगा, करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे प्रेशर भी चेंज होगा, यस। सो प्रेशर विल बी, प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर के हिसाब से देख लेंगे, टेम्परेचर इज 200 है, तो मान लो प्रेशर P हो गया, तो सॉरी शुरुआत में 1 180 ATM है देता है शायद ना, से। हाँ 1 ATM, तो 300 पे 1.5 ATM हो जाएगा, करेक्ट, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो इसमें यस इसमें एक बार और कैलकुलेट करके देख लेना ये, राइट। ये डी डेल्टा जी, डी जी इज नथिंग बट DTP माइनस SDT, एंड देन यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट, तो यहाँ DP प्रेशर इज गोइंग टू बी 1 ATM से पहले 300 पे कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, रिजिड है तो वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, तो राइट, ठीक है, दैट्स इट।